Tiger, I had given the work to execute. Tiger with his boys have executed the blast. Tiger did because of poisoning from Pakistani government and January riots. Because in January riots, Muslims were singled out. Brain was Pakistan government. ISI, what they call. And what did they do? They supplied arms, explosives through their agent Tawfiq Jaliawala, and they dictated the spots. If there would have been a slight inkling also, we would have never allowed him to do all this thing. Right from the moment I have reached there, I have been thinking to come back to my country. I was waiting for the occasion, and along with my family, not alone. I was not enjoying. If I would have enjoyed this life, why should I come here now? And before going, I had left message to my younger brother that see, I'm going to India. With this purpose, I want to show all these people now, we better shift from here. So I don't know whether they have shifted or not. Dawood Ibrahim, according to Tawfiq, he is there. Do you know Javed Chikna? I've heard his name. He is also in Pakistan. And Ijaz Pathan? Ijaz Pathan is also in Pakistan. Tiger, along with them, with their mutual consent, this work was done. On reaching Karachi, after I had a long discussion with Tiger that why you have called me here. So he later on explained me all these things. With my brother, I don't have any contact. I hardly remember I have spoken 1 hour with him, at a stretch in my life. What his role in the house was, he was just as a family member coming, having talk with us. Once he was out, he called himself Tiger. He never called himself Tiger in our house. See, I was least interested in the smuggling business and the way of doing it. As he was least interested in my income tax and company law and all these things, I never asked him what is the procedure of doing smuggling and what arms to carry, as he never asked me what files you are carrying in your bag. In Pakistan, whatever I was doing with a specific purpose, because I didn't have any other alternative. I used to collect all the information for my purpose, and that was to know exactly. And I know who are the people behind it. I know the exact addresses. And I know the Pakistani government involvement. That's what I want to say to the international community. Whenever Pakistan will get this type of occasion, they will definitely give trouble to our country. Definitely. If they'll get a chance to slap even one of our person, they will do that. They are up to this. I have come back to show the people who were behind this bomb blast. See, during my stay in Pakistan, I came to know that Tawfiq Jaliawala, this
helped by ISI of Pakistan. These were the mastermind of the blast. And execution was given to Tiger and his boys. And the training of his boys was also done by this ISI people in Pakistan. I'm not expecting anything from the people. I just want to put the facts to the people, let them decide. नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 12 मार्च 1993 यानी आज से ठीक 22 साल पहले सिर्फ 2 घंटे और 12 मिनट में मुंबई के सीने पर 12 धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों के बाद जब धुएं का गुबार छटा तो पूरे शहर में 257 लाशों के बीच करीब 700 लोग बुरी तरह जख्मी हालत में कराह रहे थे। हिंदुस्तान में आतंक का यह पहला और सबसे बड़ा हमला था और इसी हमले को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया था मुंबई के मेमन परिवार ने। और इसी मेमन परिवार में से एक है परिवार का सबसे पढ़ा लिखा शख्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी फांसी को लेकर इतना बड़ा सस्पेंस इससे पहले कभी नहीं हुआ। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी की फांसी की तारीख भी इससे पहले कभी ऐलानिया मुकर्रर नहीं हुआ। 30 जुलाई यही वो तारीख थी जो याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की मौत के लिए तय की गई थी। मगर कानूनी दांवपेच और रहम में लिपटी तमाम याचिका और दया याचिकाओं ने ऐसा खेल खेला कि कभी फंदा कसता भी दिखा और फंदा खिसकता भी दिखा। याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन दुबई के रास्ते कराची जाने से पहले अपने माँ बाप, बीवी, 5 भाई और भाभी के साथ मुंबई के इसी अल हुसैनी बिल्डिंग में रहा करता था। हालांकि 30 जुलाई 1962 को उसका जन्म मुंबई के भाईकुला इलाके में हुआ था। याकूब अपने माँ बाप अब्दुल रज्जाक और हनीफा मेमन का तीसरा बेटा है। सुलेमान, मुश्ताक उर्फ टाइगर, ईसा, यूसुफ और अय्यूब याकूब के बाकी 5 भाई हैं। बचपन में याकूब ने हाई स्कूल की पढ़ाई एंटोनियो डिसूजा से पूरी की। इसके बाद 1986 में याकूब ने बुरहानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमए किया। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की पढ़ाई की और 1990 में सीए का कोर्स पूरा कर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। सीए बनने के अगले ही साल यानी 1991 में याकूब मेमन ने अपने बचपन के दोस्त चेतन मेहता के साथ मिलकर मेहता एंड मेमन एसोसिएट्स के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म खोली। लेकिन फिर 1 साल बाद ही याकूब ने यह कंपनी बंद कर दी। इसके बाद याकूब ने AR एंड सन्स के नाम से अपनी एक दूसरी अकाउंटेंसी फर्म खोली। इसके बाद याकूब तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इसी बीच फिर उसने तेजस्थ इंटरनेशनल के नाम से मीट और मीट से बने उत्पादों की एक्सपोर्ट कंपनी खोल ली। उसकी कंपनी खाड़ी के देशों में मीट एक्सपोर्ट करती थी। एक्सपोर्ट्स कंपनी के साथ साथ याकूब अब एक ट्रेवल एजेंसी भी चलाने लगा था। याकूब की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही 1994 में याकूब के सबसे बड़े भाई अय्यूब और टाइगर मेमन को छोड़कर माँ बाप, बीवी, 3 भाई और 1 भाभी भी दुबई के रास्ते हिंदुस्तान लाए गए और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। याकूब के पिता अब्दुल रज्जाक मेमन को बीमारी की वजह से बाद में जमानत मिल गई। जमानत पर ही 2001 में 73 साल की उम्र में याकूब के पिता की मौत हो गई। याकूब की मां हनीफा, पत्नी राहिन मेमन और छोटा भाई सुलेमान मेमन को बाद में टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि दूसरे भाई ईसा मेमन, यूसुफ मेमन और भाई सुलेमान की बीवी रुबीना मेमन को उसी टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और तीनों ही अलग अलग जेलों में इस वक्त अपनी सजा काट रहे हैं। टाइगर मेमन और अय्यूब मेमन अब भी पाकिस्तान में है। टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन को जिन गुनाहों के लिए दोषी ठहराया और जिसके लिए फांसी की सजा दी, वो गुनाह ये है। मुंबई धमाके के लिए पैसे जुटाए, पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आतंकवादियों के एयर टिकट बुक किए। 13 फरवरी 1993 को याकूब ने असगर मुकादम को चौकसी से 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करने को कहा।
9 मार्च को याकूब ने असगर से टाइगर के अकाउंट से 25 लाख और ओहालिया के अकाउंट से 10 लाख रुपए ईरानी के अकाउंट में डालने को कहा। 10 मार्च को याकूब ने फिर से ईरानी के अकाउंट में 21 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहा। ये सभी पैसे मुंबई धमाके की तैयारी के लिए थे। धमाके से पहले हथियारों से भरे 7 सूटकेस में से 5 सूटकेस याकूब मेमन ने खुद अपने घर पर रिसीव किया। धमाके से एक दिन पहले पूरे परिवार के साथ याकूब का दुबई और फिर पाकिस्तान जाना। याकूब मेमन को टाटा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को फांसी की सजा सुनाई थी। 31 मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा बहाल रखी। 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब की दया याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इसी साल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद 29 अप्रैल को टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन का डेथ वारंट जारी कर दिया और फांसी की तारीख तय की 30 जुलाई, जो इत्तेफाक से याकूब मेमन के जन्म की भी तारीख थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में ही मुंबई पुलिस कंट्रोल ने 9वें धमाके की खबर दी। इस बार यह धमाका हुआ था मुंबई के मशहूर प्लाजा सिनेमा हॉल के बाहर। सहार एयरपोर्ट पर हैंड ग्रेनेड फेंके जाने के महज 10 मिनट बाद एयरपोर्ट के पास सेंटोर होटल में एक धमाका होता है, जिसमें 2 लोग मारे जाते हैं और 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट में मुंबई 12 धमाकों से लरस उठी। बाद में जब इन 12 धमाकों की गूंज थमी तो पूरे शहर से 257 लाशें उठाई गई, 700 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 27 करोड़ की प्रॉपर्टी सुहा हो चुकी थी। दुनिया के किसी भी देश में सीरियल ब्लास्ट की यह अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक साजिश थी, साजिश ब्लैक फ्राइडे की। मुंबई ने ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। बर्बादी और मातम की यह तस्वीर खुद देश के लिए नई थी। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जो पूरे मुंबई को शमशान बनाने पर तुला है। मुंबई क्या, देश की किसी भी जांच एजेंसी के लिए इस तरह के हमले की जांच का यह पहला तजुर्बा था। खैर, जांच शुरू होती है और इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाती है, ब्लैक फ्राइडे का खौफनाक चेहरा सामने आता जाता है। Exploded. Dead bodies and so much debris everywhere.
सिलसिलेवार 12 धमाके मुंबई में हुए थे, पर गूंज पूरे देश ने सुनी। ऐसे भयानक हमले से देश पहली बार दो चार हुआ था। दिल्ली तक को हरकत में आना पड़ा। स्टेट और सेंटर की सुरक्षा एजेंसियों के बीच हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका था। न तो किसी आतंकवादी संगठन ने धमाकों की जिम्मेदारी ली थी और न ही साजिश का कोई सुराग मिल रहा था। लिहाजा साजिश की तह तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस की 3 हाई लेवल टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम का जिम्मा डीसीपी राकेश मारिया को सौंपा गया। दूसरी टीम की जिम्मेदारी डीसीपी अरूप पटनायक संभाल रहे थे और तीसरी टीम की अगुवाई खुद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ए सामरा कर रहे थे। शुरुआती जांच में जो बस इकलौती जानकारी हाथ लगी वो ये कि तमाम धमाकों में कार और स्कूटर का इस्तेमाल हुआ था। सीरियल बम धमाकों को 48 घंटे बीत चुके थे कि तभी दोपहर 1:30 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दादर इलाके में एक लावारिस स्कूटर की खबर मिलती है। बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने जब स्कूटर की जांच की तो पता चला कि उसके अंदर करीब 15 किलो RDX छुपाकर रखा गया था। यह स्कूटर बम भी 12 मार्च के लिए था, पर किसी वजह से फट नहीं पाया। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया। अभी पुलिस स्कूटर की पड़ताल में ही जुटी थी कि तभी वर्ली इलाके में एक लावारिस मारुति वैन मिलने की खबर आती है। वैन की तलाशी लेने पर उसमें से भारी तादाद में हैंड ग्रेनेड, बारूद और AK-56 राइफलें मिलती है। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच से पता चला कि मारुति वैन मुंबई के माहिम इलाके के दरगाह रोड पर अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली किसी रुबीना सुलेमान मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड है। Some hand grenades. So that led us to the house of a person who owned this car. That's how this Memon family came in the picture. दरअसल रुबीना मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक डॉन टाइगर मेमन और याकूब मेमन के बड़े भाई सुलेमान मेमन की पत्नी थी। सुराग की तलाश में पुलिस की टीम फौरन रुबीना के घर पहुंचती है, पर घर पर ताला पड़ा था। पूछताछ करने पर पता चला कि पूरा मेमन परिवार 11 मार्च यानी धमाके से ठीक एक दिन पहले ही फ्लाइट से दुबई चला गया। यह खबर पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। ठीक धमाके से पहले पूरे परिवार का एक साथ देश छोड़ना शक पैदा कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने मेमन परिवार के घर का ताला तोड़कर घर की तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान एक कमरे से एक चाबी मिलती है। डीसीपी ट्रैफिक राकेश मारिया अपने एक अधिकारी के साथ वो चाबी तुरंत दादर भेजते हैं। दादर में एक लावारिस स्कूटर मिला था जिसमें उस चाबी को चेक किया जाता है। थोड़ी ही देर बाद खबर मिलती है कि चाबी उसी स्कूटर की है। अब साजिश की परतें शायद खुलने लगी हैं। RDX से भरे स्कूटर और मारुति वैन की बरामदगी के बाद पुलिस टाइगर मेमन और याकूब मेमन के बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों को ढूंढने में जुट जाती है। कोशिश रंग लाती है। टाइगर मेमन का मैनेजर असगर मुकादम पुलिस के हाथ लग जाता है। मुंबई पुलिस की यह पहली और बेहद बड़ी कामयाबी थी। असगर पुलिस के सामने पहला बड़ा खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि टाइगर मेमन अपने 3 हवाला अकाउंट्स के जरिए मुंबई में धमाके के लिए पैसे का लेन देन कर रहा था। टाइगर मेमन और जावेद चिकना 11 फरवरी को इसी सिलसिले में दुबई भी गए थे। इसके बाद वो मार्च के पहले हफ्ते में मुंबई वापस आ गए। इसके बाद टाइगर मेमन ने उसे 11 मार्च को अल हुसैनी बिल्डिंग वाले अपने घर पर बुलाया और कहा कि उसे वापस दुबई जाना है। इसलिए उसका बोर्डिंग पास और टिकट लेकर वो उसे 12 मार्च की सुबह एयरपोर्ट पर मिले। असगर टाइगर मेमन से आखिरी बार सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर मिला था। बाद में असगर को वापस अल हुसैनी वाले घर जाने के लिए कहकर टाइगर दुबई चला गया। दरअसल टाइगर मेमन ने याकूब मेमन समेत अपने सारे घर वालों को 11 मार्च को ही मुंबई से दुबई भेज दिया था, जबकि खुद 12 मार्च की सुबह दुबई गया। साजिश की परतें अब कुछ कुछ खुलने लगी थी। पुलिस को यह पता चल चुका था कि धमाकों के पीछे किसका हाथ है और टाइगर मेमन के साथ और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे।
लेकिन जो चीज पुलिस को परेशान कर रही थी वो ये कि आखिर टाइगर मेमन ने ऐसा क्यों किया और इतने बड़े हमले को उसने अकेले कैसे अंजाम दिया। पुलिस को कहानी अब भी अधूरी लग रही थी। ब्लैक फ्राइडे की साजिश सरक कर भी पूरी तरह से अभी बेपर्दा नहीं हो पाई थी। मुंबई का एक छोटा सा स्मगलर टाइगर मेमन भला पूरी मुंबई को कब्रिस्तान क्यों बनाना चाहता था। टाइगर मेमन के बारे में मुंबई पुलिस बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी, पर टाइगर मेमन के मैनेजर के खुलासे को वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। और इन्हीं खुलासों के बीच पुलिस को मिलती है RDX की वो खेप जो समंदर के रास्ते तैरते हुए मुंबई पहुंची थी। इतना बारूद जो मुंबई जैसे कई शहर को मलबा बना सकता था। टाइगर मेमन के मैनेजर असगर मुकादम के खुलासे के बाद अब पुलिस के सामने मुंबई हमले के गुनहगारों के कुछ चेहरे तो थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो सभी उसकी गिरफ्त से बाहर थे। असगर के मुताबिक 12 धमाकों के लिए टाइगर मेमन ने जावेद चिकना के अलावा कुल 18 गुर्गों को तैयार किया था, इस हिदायत के साथ कि बम रखते ही सभी मुंबई छोड़ देंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि जो अंडरवर्ल्ड दाऊद एंड ग्रुप ने ये केस करवाया, तो इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ये कोई सोच नहीं सकता था। पुलिस लगातार जगह जगह छापे मार रही थी, तलाशी ले रही थी। फिर इसी दौरान उसे एक और बड़ी कामयाबी मिलती है। जावेरी बाजार की एक इमारत इमामी मंजिल की सीढ़ियों पर कुछ सूटकेस मिलते हैं। सूटकेस में AK-56 राइफलें और तकरीबन 200 कारतूस थे। वहीं पुलिस ने असगर की निशानदेही पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी थी। इसमें बम धमाकों की साजिश में जुड़े लोगों के रिश्तेदार भी थे और इनमें से एक शख्स था याकूब। याकूब की निशानदेही पर पुलिस ने मुंब्रा के मोबीन नगर के एक घर से RDX से भरे 32 बैग बरामद किए। इनमें करीब 1032 किलो RDX और 574 किलो जिलेटिन भरा हुआ था। RDX की इससे बड़ी खेप हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं मिली थी, पर यह तो शुरुआत थी। पुलिस ने मुंबई के पास पनवेल थाने में तैनात एक सिपाही की निशानदेही पर नागला गांव के पास समंदर की गहराइयों से RDX से भरे 28 बोरे और जिलेटिन से भरे 20 बोरे और बरामद किए। इन बोरों में 2380 किलो RDX और जिलेटिन भरे थे। पूरी मुंबई को उड़ाने के लिए शायद ये काफी थे। धमाकों को करीब 1 महीना पूरा होने वाला था। पुलिस की जांच और धरपकड़ दोनों जारी थी। इसी बीच पुलिस को पहली बार साजिश का सबसे बड़ा सुराग मिला। पुलिस ने एक मुखबिर की खबर पर बिल्डर इब्राहिम चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान इब्राहिम ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को पहली बार चौंका कर रख दिया, क्योंकि धमाके के लिए पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और अबू सालेम का नाम सामने आ रहा था। इब्राहिम चौहान ने ही पुलिस को बॉलीवुड के 2 फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला का भी नाम बताया। उसी ने पहली बार संजय दत्त का भी नाम लिया। इब्राहिम चौहान ने पुलिस को बताया कि उसे अनीस इब्राहिम ने संजय दत्त के घर गिटार और टेनिस बॉल पहुंचाने के लिए कहा था। गिटार यानी AK-56 राइफल और टेनिस बॉल मतलब हैंड ग्रेनेड। इस खेप में 9 AK-56 राइफलें और 80 हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन संजय दत्त ने उसमें से सिर्फ एक AK-56 राइफल लिया। बाकी सामान अबू सालेम के घर भिजवा दिया। मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को बम धमाकों में दाऊद और उसके गुर्गों का साथ देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश लगातार तेज होती जा रही थी, लेकिन अब भी उसके हाथ वो लोग नहीं लगे थे जिन्होंने 12 मार्च 1993 को मुंबई के अलग अलग इलाकों में वो बम रखे थे।
इस बीच इस बात का भी पता चला कि मुंबई पुलिस और कस्टम विभाग के कुछ लोग हथियारों का जखीरा और आरडीएक्स मुंबई पहुंचाने में उनके मददगार थे। पुलिस ने कस्टम विभाग के एक बड़े अधिकारी SN सिंह को मुंबई बम धमाकों के आरोपियों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने बम धमाकों में इस्तेमाल होने वाले आरडीएक्स, गोला बारूद और हथियार मुंबई के अंदर पहुंचाने में दाऊद और उसके साथियों की मदद की थी। थापा के साथ कस्टम विभाग के कई और अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए। कस्टम के बाद पुलिस ने अपने ही विभाग के कुछ लोगों को भी मुंबई के गुनहगारों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया। धमाकों की जांच का 59वां दिन मुंबई पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगती है जब वो यूपी के रामपुर से बम धमाकों की साजिश में शामिल बादशाह खान को गिरफ्तार कर मुंबई लाती है। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह खान मुंह खोलता जाता है, ब्लैक फ्राइडे की साजिश तार तार होती जाती है। बादशाह खान बोल रहा था और 12 धमाकों का सच बेनकाब होता जा रहा था। बादशाह खान ने पुलिस को बताया कि मुंबई धमाकों की पूरी साजिश दरअसल याकूब मेमन के बड़े भाई टाइगर मेमन ने ही रची थी और इसमें उसका साथ दिया था दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस इब्राहिम ने। बादशाह खान ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि टाइगर मेमन ने अपने साथियों जावेद चिकना, अनवर थीबा और इम्तियाज की मदद से जिहाद के नाम पर 20 लोगों की एक टीम बनाई। फिर उन लोगों को बम बनाने, बम रखने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा। इन लोगों को विदेश भेजने का काम याकूब मेमन ने किया था क्योंकि याकूब ट्रैवल एजेंसी भी चलाता था। सलीम कुर्ला की निशानदेही पर मुंबई पुलिस की एक टीम बडोदरा जाती है और वहां के तुलसी होटल के कमरा नंबर 204 से सीरियल बम ब्लास्ट के 3 और आरोपियों मोहम्मद सईद, उस्मान खान और रईस को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। पूछताछ में तीनों पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने से लेकर मुंबई में बम रखने की पूरी कहानी सुनाते हैं। इनकी निशानदेही पर बाद में मुंबई पुलिस बम रखने वाले बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब मुंबई पुलिस के सामने सब कुछ साफ था। साजिश थी, साजिश रचने वाले भी और साजिश की वजह भी। दरअसल 12 मार्च 1993 बदला था 6 दिसंबर 1992 के बाद भड़के दंगे का। वो दंगे जिसने देश के दूसरे शहरों के साथ साथ मुंबई को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मुंबई दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। डे कंपनी का CEO दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 से पहले ही मुंबई से निकलकर दुबई पहुंच चुका था और वहीं से अंडरवर्ल्ड का अपना पूरा साम्राज्य संभाले था। पर तभी एक रोज दुबई में उसके बंगले पर एक पार्सल आता है। उस पार्सल में एक खत भी था। कहते हैं उस खत को पढ़ते ही दाऊद फैसला कर चुका था, फैसला मुंबई को दहलाने का। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसके दुबई के बंगले पर एक पार्सल मिलता है। पार्सल में कुछ चूड़ियों के साथ एक खत था। उस खत में लिखा था कि जो भाई अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत न कर सके उसे ये तोहफा मुबारक हो। कहते हैं कि यह खत पढ़ने के बाद दाऊद ने मुंबई को बर्बाद करने की कसम खा ली। मुंबई में भड़की दंगों की आग टाइगर मेमन भी आ चुका था। दरअसल दंगाइयों ने उसके ऑफिस को जलाकर खाक कर दिया था, लिहाजा वो भी बदले की आग में सुलग रहा था। बदला लेने के लिए उसी ने सबसे पहले इस साजिश का खाका तैयार किया, पर वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे डी कंपनी की मदद चाहिए थी। इसी के बाद उसने मुंबई के एक होटल में अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दौसा, तौफीक जलियावाला, शेख अहमद, हाजी उमर, मुस्तफा मजनू और सैयद आरिफ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे का पूरा प्लान तैयार किया। गुल्लू दगा दे दिया मालूम ना।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे टाइगर मेमन का पूरा प्लान खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान से 19 लोगों के साथ ट्रेनिंग लेकर लौटा एक गुर्गा गुल मोहम्मद ने ऐन वक्त पर खुद को साजिश से अलग कर दिया। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था। टाइगर मेमन को जब ये खबर मिली, उसने तुरंत गुल्लू को मारने का हुक्म दे दिया, मगर गुल्लू जान बचाकर कहीं छुप गया। यही वो तारीख थी जब गुल्लू ने खुद ही जाकर पुलिस में सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस के सामने पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने से लेकर मुंबई में धमाके की साजिश यानी सारी बातें उगल दी। यहां तक कि उसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और शिवसेना भवन समेत कई जगहों के नाम भी बताए, पर अफसोस पुलिस ने उसकी बातों पर तब यकीन नहीं किया। अगर पुलिस उसकी बात पर भरोसा कर लेती तो शायद 12 मार्च 1993 कभी होता ही नहीं। मगर दूसरी तरफ गुल्लू के सरेंडर की खबर मिलने के बाद भी टाइगर मेमन ने अपना इरादा नहीं बदला। उल्टे उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो 12 मार्च को ही मुंबई में धमाके करेगा। हालांकि पहले वो ये धमाके अप्रैल में शिवाजी की जयंती के मौके पर करना चाहता था, लेकिन गुल्लू की गिरफ्तारी के बाद उसने 12 मार्च को ही धमाके करने का फैसला कर लिया। प्लान के मुताबिक 12 मार्च के धमाके के लिए एक एम्बेसडर कार, 2 मारुति वैन, 3 मारुति 800 कार, एक कमांडर जीप, एक मोटरसाइकिल और 4 स्कूटरों के इंतजाम किए गए। फिर पहले से तय प्लान के तहत हर गाड़ी को उसकी तय मंजिल पर भेजा गया और इसके बाद दोपहर 1:28 से 3:40 तक मुंबई थर्रा उठी। हर बम के साथ टाइमर लगा था, जिसका टाइम टाइगर मेमन सुबह दुबई जाने से पहले ही फिक्स कर गया था। मुंबई धमाके की जांच मुकम्मल होने के बाद 30 जून 1995 को टाडा कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। सीबीआई ने कोर्ट में 16,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और याकूब मेमन समेत कुल 124 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से आज भी 35 फरार हैं, जबकि 7 गैंगवार या एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 2007 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। याकूब मेमन समेत 12 आरोपियों को सजाए मौत मिली, जबकि 7 को उम्र कैद। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को छोड़कर बाकी सभी की मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी, जबकि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, तौफीक जालियावाला और जावेद चिकना आज 22 साल बाद भी पुलिस और सजा दोनों से दूर है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।